فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. الف لام میم. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا بغیر آزمائش کے جب وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے ان سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی اور امتحانات میں اور مصائب میں مبتلا کیا، بس البتہ ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ جان لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ بولا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جان لے گا جن لوگوں نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ بارشیں کیوں نہیں ہوتی۔ اس کا بنیادی سبب اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا حکم اور اس کائنات کو بنانے کا سب سے بڑا بنیادی مقصد، اس سے امت جو ہے وہ پیچھے ہٹی ہوئی ہے اور بہت دور ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اسی کی بندگی کرنا، اسی کی عبادت کرنا، رب بھی اسی کو ماننا اور معبود بھی اسی کو ماننا۔ یہ وہ بنیادی حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل اس دنیا میں تشریف لائے، سب کا میسج یہی تھا، سب کا پیغام یہی تھا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی سب سے پہلے آ کر یہی پیغام لوگوں کو دیا۔ آج امت اس پیغام سے بہت دور ہے۔ اس بارے میں نے تفصیل کے ساتھ پچھلے خطبہ جمعہ میں گفتگو کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پیغام کو جو آدمی اختیار کرتا ہے، جو آدمی اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اسے سکون کم اور آزمائشیں اور مصیبتیں زیادہ ملتی ہیں۔ آج امت اس میسج سے، اس پیغام سے دور کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا والے لوگ ایسے بندے کو اچھا نہیں گردانتے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے تمام انبیاء اور رسل، انہوں نے جب پیغام پہنچایا تو کسی قوم نے بھی اپنے نبی کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ رضامندی کا اظہار نہیں کیا، الا ماشاءاللہ چند لوگوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی چند لوگوں نے۔ انہی چیزوں کا میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، جس سے آج امت جو ہے وہ کوسوں دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہر کوئی لیتا ہے، اور کوئی بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں میں شرک کرتا ہوں۔ سب کہتے ہیں ہم توحید یافتہ ہیں، توحید پرست ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ لیکن اعمال اکثر لوگوں کے ایسے ہیں جن میں جو ہے وہ شرک پایا جاتا ہے، وہی بعین ہی وہ شرک جو مشرکین مکہ میں پایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان کیا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو۔ آپ کو جب پیغام ملا، پہلا سورہ قرآن مجید کی جو پہلی وحی نازل ہوئی سورہ علق، جب غار حرا میں فرشتے نے آ کر نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا،
पहली वही की चंद आयतें नाज़िल हुई, फिर वक्फा पड़ गया, वक्फे के बाद दोबारा वही आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला का अपने नबी के लिए और अपनी नबी की उम्मत के लिए सबसे पहला पैगाम यही था, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वली रब्बिका फस्बिर। ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ कमली लेने वाले, उठिए, अब चादरें ओढ़ने का वक्त नहीं रहा, अब उठने का वक्त है। कुम फअंज़िर, उठिए और कौम को डराइए। क्या डराना है? कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करो। आप भी बयान करें और कौम को भी यही कहें कि वो अपने रब की बड़ाई बयान करें। बहुत सारे माबूदों की बड़ाई तो बहुत ज्यादा बयान की जाती है, औलिया की बड़ाई बहुत बयान की जाती है, शुहदा की बड़ाई बहुत बयान की जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करने की जरूरत है। आप उसकी बड़ाई को बयान कीजिए। व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर, अपने कपड़ों को पाक कीजिए। व रुज्ज़ फहजुर, बुतों की और शिरक की पलीदगी से दूर हो जाइए, अपने आप को पाक कर लीजिए, इनको छोड़ दीजिए। और इस रास्ते में बड़ी तकलीफें आएंगी, बड़ी मुशक्कतें आएंगी। वली रब्बिका फस्बिर, अपने रब का कहा मानते हुए उसके लिए क्या करना? सब्र कर ले कि मेरे रब का पैगाम है, इसमें मुशक्कतें आनी है, तकलीफें आनी है, इसलिए सब्र कर ले। ये अल्लाह ताला ने पहला पैगाम जो है वो दिया। आप उठे और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को थोड़ा थोड़ा करीब करीब में जिनके बारे में पता था कि ये मानने वाले, उनको खबर दी और उनमें से कुछ लोग ईमान भी ले आए। चंद ही लम्हात गुजरे, अल्लाह ने पैगाम नाजिल कर दिया, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदार जो है उनको डराइए। ये दोस्त जो मानने वाले, इनको अब छोड़ें, ये तो आप मान गए हैं, आगे बढ़िए, अपने रिश्तेदारों को डराइए। रिश्तेदारों को डराया, बुला लिया आपने 2-3 कबीले, बनी हाशिम के और बनु अब्दुल मुत्तलिब के, बनु मुत्तलिब के, उन्हें बुला लिया। बुला के जब पैगाम दिया तो अबू लहब वहां भी मौजूद था, फौरन बोल उठा, भतीजे ये काम ना करो, ये ऐसा काम है सारी दुनिया दुश्मन बन जाएगी, तेरा खानदान पूरे अरब के साथ टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए ये काम ना करो, पीछे हट जाओ। उसने इस तरह की बात की और मजलिस को तितर बितर कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कुछ दिनों के बाद कहा, मजीद आगे बढ़िए, फस्दा बिमा तुमर वआरिज़ अनिल मुशरिकीन, खुल के ऐलान कर दीजिए, खुल के ऐलान कीजिए। वकुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन, और कह दीजिए मैं खुला डराने वाला हूं। चुनाचे आप बाहर निकले, कोहे सफा पे चढ़ के ऐलान किया। और आप जानते हैं अबू लहब ने वहां पे भी मुखालफत की और आपको गालियां भी दी और बुरा भला भी कहा। पहले दिन से ही, पहले पैगाम से ही ये मुश्किलात का जो है वो आगाज हो। वही कौम जो आपको सैयद मानती थी, अमीन मानती थी, सादक मानती थी, जो आपके आगे और पीछे थी और आपका एहतराम करती थी, सिर्फ एक कलमा कहने की बिना पर सारी कौम जो है वो दुश्मन बन। और फिर आप जानते हैं, मैं सारी तारीख नहीं बतलाना चाहता, चंद एक वाकयात की तरफ इशारा करना चाहता हूं, किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने कसम पुरसी की जिंदगी बसर की है। तारीख का मुताला करना चाहिए, सीरतुन नबी का मुताला करना चाहिए, ताकि ईमान भी ताजा हो और हमें पता चले कि ये ईमान हमारे तक कैसे पहुंचा है, जिसको आज हम सीने के साथ लगाने के लिए जल्दी से तैयार नहीं। मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, इकरार करते हैं, लेकिन अपने आमाल से उसकी मुखालफत भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लीजिए, आपको कितनी मुश्किलात उठानी पड़ी, आपके सहाबा को कितनी उठानी पड़ी। आप बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उक़बा बिन अबी मुईत बदनाम जमाना आता है और आपके गिरेबान में, आपके गले में चादर डालकर उसको बट देने शुरू कर देता है।
आपकी गर्दन खूब दब जाती है, आंखें बाहर को निकलना शुरू हो जाती हैं। वो दिन बड़ा शदीद था जिस दिन आपके साथ ये सलूक किया गया। किस वजह से? कि आप कहते थे ये बुत जो हैं ये हमारे माबूद नहीं हैं, एक अल्लाह की जात जो है वो हमारा माबूद, उसको सजदा करना चाहिए, बुतों को छोड़ देना चाहिए, बाकी लोगों को, माबूदों को छोड़ देना चाहिए। वो बुत कौन थे? आमतौर पे लोग ये कहकर बात टाल देते हैं, ये तो पत्थर की मूर्तियां थी, पत्थर की मूर्तियों की इबादत नहीं करनी चाहिए, वलियों की कर लो, कोई मसला नहीं। ये बुत जो थे ये कौमे नूह के नेक लोगों की मूर्तियां थी। वो सुवा, यगूस, यऊक, नसर, ये सारे नेक लोग थे। लात बुत मक्के में मौजूद था। ये लात क्या करता था? आदमी था। ये आदमी सत्तू को पीस कर पानी में मिक्स करके हाजियों को पिलाया करता था, नेक आदमी था, खाना खिलाया करता था। जब लोगों फौत हो गया, लोगों ने कहा नेक बंदा है, लिहाजा इसकी मूर्ति बनाओ और इसको याद रखने के लिए कर, याद रख लिया और फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी इबादत करना शुरू कर। इसी तरीके से कौमे नूह में बुत थे, नेक बुत नहीं थे, नेक लोग थे। सही बुखारी के अंदर रिवायत आती है कि शैतान इंसानी शक्ल में आया या उनके दिलों में ख्याल डाला कि लोगों तुम्हारे बुजुर्ग कितने नेक लोग थे, ये वुद, ये सुवा, ये यगूस, यऊक, नसर, ये सारे वलीउल्लाह थे, नेक हस्तियां थी, तुम उनको भूल ही गए, तुम इनकी तस्वीरें बनाओ। आज हम बापों की तस्वीर बनाकर अपनी बैठक में और अपनी दुकान पे लगाते हैं, ये बुजुर्ग हमें याद आते हैं, याद आते हैं तो अल्लाह याद आता है। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं कि शैतान ने उनसे कहा नेक लोग तुम्हें भूल ही गए, उनकी मूर्तियां बना लो, उनकी तस्वीरें बना लो, अपने कमरों में लगा लो, उनको देखोगे तुम्हें रब याद आ जाएगा। अल्लाह को याद करने का बड़ा बेहतरीन जरिया है। बड़ी अच्छी बात थी, लोगों ने ऐसे ही कर, उन्होंने तस्वीरें बनाई, उनकी मूर्तियां बनाई और बढ़ा के अपनी दुकानों में, बैठकों में, जहां कहीं बैठते थे वहां सजा के रख ली। वाकई उनको देखने से रब याद आता था। ये नस्ल चली गई, अगली नस्ल आई, शैतान ने भुला डाला कि ये नेक लोग हमने अल्लाह को याद करने के लिए रखे हैं। उसने आकर उनके दिलों में डाला ये नेक लोग पहुंची हुई हस्तियां हैं, इनके साथ इबादत करो, इनके सामने रुकू करो, इनके सामने सजदा करो, इनके सामने मन्नत मानो, नजर न्याज दो, चढ़ावा दो, तुम्हारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि अल्लाह के हमें करीब कर देते हैं। चुनाचे उस नस्ल में इबादत शुरू हो गई, इन नेक लोगों की इबादत शुरू हो गई। यही बुत चलते चलते बाद रिवायात में आता है अमर बिन लुहई मक्का के अंदर, उसे शैतान ने ख्वाब में दिखलाया या उसके ख्यालात में दिया कि जद्दा में कोई एक जगह है, वहां पे ये बुत मौजूद है, जमीन में दफन है, निकालो वहां से। उसने जाकर वहां से बुत निकाले और मक्का में फैला दी। हज के मौका पर लोग आए, सबको एक एक दे दिया, ले जाओ अपने अपने इलाके में जाके बात करो। इस तरीके से इन मूर्तियों की परिस्थिति जो है वो शुरू हुई। दरअसल ये मूर्तियां नेक लोगों की हैं। अल्लाह ताला ने कहा ना मूर्तियों की इबादत करो, ना नेक लोगों की इबादत करो, ना वलियों की इबादत करो, ना नबियों की इबादत करो, ना शुहदा की करो। लोगों एक अल्लाह की इबादत करो। ये पहला पैगाम आपने दिया। सारे दुश्मन हो गए, वो जो कहते थे हजर अस्वद का फैसला आपने करना है, और आपने किया और सब राजी हो गए। जो हजर अस्वद रखने पे तलवारें लेकर निकल आए थे, कत्ल कर देंगे, हमने लगाना पत्थर, आपके फैसले के ऊपर राजी हो। वही क्या कर रहे हैं, आपके गिरेबान में, आपके गले में चादर डालकर बट दे रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप हलाक हो। वो तो भला हो किसी ने खबर दिया बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को कि नबी एक इंसान को सजा दी जा रही है, उनको मारा जा रहा है। वो भागे, आकर जोर से धक्का दिया और आपको छुड़ा दिया। मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लम को छोड़ दिया, बकर सिद्दीक को पकड़ लिया, उनकी खूब धुलाई की, बहुत मारा, हत्ता के बेहोश होके गिर गए। फिर उनके खानदान वाले लोग आए और भाग दो, यहां से बच जाओ, कहीं वो कबीले वाले आ गए तो तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। इनको छोड़ा, फिर उठाकर घर ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सलूक रवा रखा गया। इसी उकबा का, बल्कि अबू लहब का बेटा उतैबा, वो एक दफा आप सल्लम के पास आता है। क्या मकसद था, क्या दुश्मनी थी? आप उनको नमाज पढ़ने का कहते थे,
सदका खैरात का कहते थे? नहीं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की इबादत करो। तो वो उतैबा जो है वो आया और आकर जो है वो आपके कपड़े फाड़े, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आपके ऊपर लुआब फेंका, थूक फेंका और कहा वन नज्मी इज़ा हवा, मैं इसके साथ कुफ्र करता हूं। आप सल्लम उस वक्त जो है वो बर्दाश्त ना कर पाए। अमूमन आप कभी बद्दुआ नहीं दिया करते थे, उस वक्त आपकी जुबान से बद्दुआ नहीं। अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, या अल्लाह अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को इसके ऊपर मुसल्लत कर। कुत्ते से मुराद जहरीला जानवर, जो चीर फाड़ करने वाला जानवर, वो मुराद। चुनाचे ये उतैबा जो है एक दफा सफर में शाम में गया अपने कुंबे कबीले के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और वहां पे उसने शेर को देखा। उसे शेर देखते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ याद आ, उसने कहा आज लगता है मैं मारा जाऊंगा। मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में बैठे हुए मुझे यहां पे हलाक कर दिया है, वो वहां पे बैठा हुआ मुझे यहां पे हलाक कर दिया। चुनाचे उसके कबीले वालों ने, उसके दोस्तों ने कहा नहीं तुम दरमियान में रहो, दाएं बाएं आगे पीछे लोगों को फैला दिया और जानवरों को रख दिया, उसे दरमियान में सुलाया। रात को सोया हुआ था, शेर आया और उसने चीर फाड़ कर दी। दुश्मनी क्या थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ एक ही कि लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकार। अबू जहल, अबू लहब अपनी दुश्मनी में इंतहा को पहुंचे हुए थे। अबू जहल कई दफा उसने कहा कौन है बदबख्त, उठे और आप सब नमाज पढ़ रहे हैं, फुला जगह पे ऊंट ज़बह किया गया है, उसकी ओजरी है, उसकी बच्चे की, उसकी बच्चा दानी वो पड़ी हुई है, लाकर आपके ऊपर गंदी डाल दी जाए। चुनाचे यही गालिबन उक़बा बिन अबी मुईत जो है वो उठा और लाकर वो गंद उठाकर लाकर आपके पुष्ट पे रख। आप सब नमाज में सजदे में पड़े रहे। किसी ने हजरत फातिमा को बतलाया, फातिमा तेरे अब्बा के साथ क्या किया जा रहा है? वो भागी हुई आई, बुरा भला कहा और हाथ से पीछे हटाया उन चीजों को और साफ किया और फिर जो है वो घर में गए। अबू जहल कई दफा वो कहता है कि मैं आपको नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हलाक करने के इरादे से आगे बढ़ा, हलाक करने के इरादे से। कहा मैं पत्थर लेकर आया, मेरा जी चाहा कि मैं पत्थर मारूं। कहने लगा आप नमाज पढ़ रहे थे, मैं आगे बढ़ा तो मैं डर के मारे पीछे हटा। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा कि मैंने देखा कि आपकी खंदकें हैं और फरिश्ते हैं जो पर मार रहे हैं, मैं अगर आगे बढ़ता तो शायद बिल्कुल मेरा कुछ ना बचता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में सहाबा को बतलाया, हाँ वाकईतन आपकी खंदकें थी और फरिश्ते थे, अगर ये आगे बढ़ता तो इसके जिस्म की बोटी बोटी जो है वो कर दी जाती। अबू जहल को क्या दुश्मनी थी सवाए इस अदावत के कि ये हमारे माबूदों को बुरा कहता है, एक अल्लाह की ना एक अल्लाह का नाम लेता है, एक अल्लाह का नाम। अबू तालिब, उसके साथ कुरैश मक्का ने कितनी दफा मुआहदे किए कि अपने भतीजे को रोक लो। एक दफा ग्रुप लेकर आए कि अबू तालिब तुम हमारे साथ टक्कर ना लो, तू पीछे हट जा, ये भतीजा हमारे हवाले कर दे। उसने कहा नहीं, छोड़ दो, ये अच्छे काम करता है, तुम्हें तंग नहीं करेगा, इसको करने दो। वापस चले गए। फिर देखा कि नहीं मामला रुका, फिर दोबारा आ गए। दोबारा आए तो धमकी दी, अबू तालिब अब हमारी तुम्हारे साथ जंग हो जाएगी, या तुम रहोगे या हम रहेंगे, या ये रहेगा या हम रहेंगे। चुनाचे अबू तालिब जो है वो मजबूर हो गए और कहने लगे भतीजा तुम छोड़ दो, इनको तंग ना किया, ये काम छोड़ दो, ये काम मुश्किल है। भतीजे ने कहा चचा आपने मेरी मदद करने से पीछे हटना है तो हट जाइए। ये लोग मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं पे चांद लाकर भी रख दें, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस मिशन से बाज नहीं आ सकते। वो मिशन क्या था? एक अल्लाह की इबादत। लोगों एक अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना ठहराओ, सिर्फ एक अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही करने वाला है, वही सबका रब है, सबको पालने वाला और सबको रिज़्क देने वाला और सबको औलादे देने वाला वही है। तुमने छोड़ना, मुझे छोड़ दो। और आप रोते हुए वहां से पीछे हटने लगे। चचा का अपने भतीजे को रोते हुए देखते हुए दिल पसीज गया। भतीजे को बुलाया, भतीजे आगे आओ, अपने मिशन पे लगे रहो, तुम्हारा चचा तुम्हारे साथ से पीछे नहीं हटेगा, तुम्हारे साथ रहे। फिर आए, तीसरी मरतबा फिर आए, फिर आकर कहने लगे अबू तालिब चलो एक मुआहदा कर लो हमारे साथ,
کہا کیا معاہدہ کرنا ہے؟ کہا یہ معاہدہ کر لو، ایک ہمارے پاس بچہ ہے بڑا خوبصورت ہے، وہ بچہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں اور یہ بچہ تم ہمیں دے دو۔ ابو طالب بڑے جہاندیدہ آدمی تھے، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کہنے لگے مشرکین مکہ بڑے سیانے اور بڑے سمجھدار محسوس ہوتے ہو، تم اپنا بچہ مجھے دے دو تاکہ میں اسے کھلاؤں اور پلاؤں اور اسے پرورش کروں اور اسے بڑا کروں، اور تم میرے بچے کو لے کر جا کر جو ہے وہ ہلاک کر دو، تمہیں کوئی حیا نہیں آتی؟ یہ برابری کا سودا ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ ساری دشمنی کیوں مول لی؟ شیب ابی طالب، کون نہیں جانتا سیرت النبی کا بہترین واقعہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا قبیلہ بنو مطلب اور بنو ہاشم، ان کے ساتھ مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کر دیا، شادی نہیں کرنی، ان کے ساتھ جو ہے وہ خرید و فروخت نہیں کرنی، لین دین نہیں کرنا، ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، ان کو اپنی چیز کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا۔ چنانچہ وہ شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، حتیٰ کہ تاریخی روایات میں موجود ہیں لوگ چمڑے اور پتے کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی۔ اول تو پیسہ نہ رہا، کسی کے پاس پیسہ بھی تھا، مشرکین مکہ اس کو چیز خریدنے نہیں دیتے، باہر سے کوئی سامان آتا پہلے جا کر خرید لیتے، زیادہ پیسے دے کے خرید لیتے، لیکن ان لوگوں کو نہ خریدنے دیتے۔ حتیٰ کہ شیب ابی طالب سے جو ہے وہ بچوں کے اور عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی۔ 3 سال تک کس تکلیف کے اندر یہ زندگی گزاری ہے، ہم صرف جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، حقیقت میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کیسے ان لوگوں نے چمڑے کھائے اور پتے کھا کر جو ہے وہ گزارا کیا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ کیوں؟ کس بنا پر؟ ان یقول ربی اللہ، آپ یہ کہتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب کوئی نہیں۔ رب کا معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، یہ پیغام آپ نے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دشمنوں نے کہاں تک جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرنے کی جو ہے وہ سوچی، کتنی دفعہ قتل کے منصوبے بنائے، لیکن کسی مرتبہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ کے ساتھ تو سلوک کیا صحابہ کرام جو کمزور تھے ان کے ساتھ تو اخیر کر دی، بڑے لوگوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ابھی میں نے بتلایا کہ آپ کو بچایا تو ابوبکر صدیق کے اوپر پل پڑے اور انہیں خوب مارا اور مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، ان کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑ دیا، کہا کہ کلمہ چھوڑو، نماز نہیں چھوڑو، سچ بولنا نہیں چھوڑو، امانت دیانت اس کی بات نہیں کی ہے، کسی اور چیز کی بات نہیں ہے، کلمے کو چھوڑو، لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، ایک اللہ کو معبود کہنا اور رب کہنا چھوڑ دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں ان کی شدید مخالف ہو گئی، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، بے دین ہو گئے ہو۔ ایک موقع پر وہ باز نہ آئے تو انہوں نے اونٹ کی ہڈی پڑی تھی وہ اٹھا کے ماری اور ان کی ناک جو ہے وہ توڑ، اتنے زور سے ہڈی ماری۔ دوسری دفعہ جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آتا تو پھر کہا کہ بیٹا اگر تو کلمہ نہیں چھوڑتا ہے تو تیری ماں جو ہے وہ کھانا نہیں کھائے گی، مر جائے گی تیرے نام سے۔ تیرا دین یہ کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو تو اپنے ہی دین کی خلاف ورزی کرتے وہ مر جائے گا۔ اس نے کہا ماں ایسا نہ کام کرو، میں نے کلمہ نہیں چھوڑنا۔ اس نے ایک دن کھانا چھوڑا، دوسرے دن پھر چھوڑ دیا، تیسرے دن پھر چھوڑ دیا۔ جب مرنے کے قریب ہوئی تو سعد بن ابی وقاص نے کہا ماں تو ایک ماں ہے، تیری جیسی 100 مائیں ہوں، ایک ایک کر کے ساری اس کلمے کے اوپر وار۔ یہ کلمہ نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ ہم نے ترک نہیں کرنا ہے، اپنے رب کو ایک مان لیا ہے، اب رب کے ساتھ دوبارہ کبھی شرک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تب ماں کو سمجھ آئی کہ یہ نہیں بدلنے والا، پھر اس نے کھانا کھایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کون نہیں جانتا، وہ کیا کہتے تھے؟ سچ بولنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ ان کو بھی یہی کہا جاتا اپنے نبی کا اور اپنے رب کا جو کلمہ پڑھتے ہو وہ چھوڑ۔
गरम रेत के ऊपर लटाया जाता, गले में रस्सी बांधकर खींचा जाता, गरम पत्थरों के ऊपर उन लटाया जाता, जमीन पे लटाकर उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते। शदीद गर्मी की वजह से, पत्थर गर्म होने की वजह से पत्थर जो है उनके जिस्म में खूब जाते, हत्ता के गोश्त जल जाता और गोश्त की टुकड़ी जो है वो जिस्म से झड़ जाते। बाज रिवायात में आता है जब इस्लाम फैल गया, वो सही हो गए, उनके साथ बच्चे खेला करते थे, उनके जिस्म में बसों का सुराख थे, वहां पे बच्चे अपनी उंगलियां दाखिल कर देते। ये सारी तकलीफें किस वजह से थी? अहद अहद अहद। बिलाल कलमा छोड़ दो, कहा अहद, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, एक ही है बस, हमारा एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। सिर्फ अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ताला का नाम लिया और उसके कलमे को बुलंद किया। हजरत अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन नहीं जानता, इस्लाम के अव्वलीन मुसलमान होने वाले, लेकिन इतनी शदीद तकलीफें, उनको भी पत्थर के साथ घसीटा जाता, गर्म रेत से गर्म पत्थरों पे लटाया जाता, बल्कि ये पूरा खानदान, इनकी वालिदा अम्मार इब्न यासिर की, इनके भाई और इनके जो है वो वालिद, सबके साथ इंतहाई शदीद जुल्म किया जाता। हत्ता के इनकी वालिदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम की पहली शहीदा, अबू जहल खबीस, वो कहा करता, सुमैया तू मोहम्मद का कलमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए पढ़ती है, तू उनके ऊपर आशिक है, तू उससे शादी करना चाहती है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन वो बाज ना आए अपनी बदबख्ती से, और हत्ता कि उसने पेट में नेजा मारा और नेजा मार के शहीद कर दिया। ये इस्लाम का पहला खून था जो इस्लाम के रस्ते में जो है वो बहा है। किसकी खातिर? ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर। लोगों, एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह के सिवा ना कोई हमारा रब है, ना कोई हमारा माबूद है, वही एक हमारा जो है वो परवरदिगार है। अम्मार इब्न यासिर इतना मारा, हत्ता कि उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दो। वो मजबूर हो गए और मजबूर होकर उन्होंने जो कलिमात कहने थे कुछ कह दिए। बाद में मारे खाकर उन्होंने छोड़ दिया, जब देखा कि इसने बुरा कह दिया, छोड़ दिया। बड़ा परेशान हुए, रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए। कहा या रसूलल्लाह, जालिमों ने बहुत मारा, बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की है, मेरा क्या हुक्म है? आपने फरमाया अम्मार, तुम्हारा दिल कैसा था? कहा या रसूलल्लाह, दिल में तो जर्रा बराबर भी शक नहीं, आप भी सच्चे हैं, आपका अल्लाह भी सच्चा है, हमारा उसी पे ईमान है, दिल में कोई तजल्जल नहीं आया, सिर्फ जुबान से मैंने कुछ कलिमात कहे। आपने फरमाया अम्मार जाओ, इन यऊद उद, जाओ, अगर वो दोबारा तेरे साथ ऐसा सलूक करें फिर तुम दोबारा कह देना, कोई मसला नहीं। अगर तुम्हारा दिल पक्का मोमन है तो जुबान से मजबूरी के वक्त कोई कलमा निकल भी जाए तो इंशाअल्लाह कोई हरज। इस्बिरु या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह, आले यासिर सब्र करो, बर्दाश्त करो, तुम्हारा मौइद अल्लाह के यहां जो है वो जन्नत है, तुम्हें कामयाबी जो है वो जन्नत की शक्ल में मिलेगी। हजरत जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी सहाबिया हैं और ये भी एक लौंडी थी, ये भी कलमा पढ़ लिया। मालिकों ने बहुत मारा, इतना मारा, मार के आंखों की बिनाई को जाया कर दी, आंखें जाया हो गई, और उल्टा इल्जाम दिया कि देखा तू हमारे बुजुर्गों की, हमारे बुतों की जो है वो तौहीन करती है, बुतों ने तुझे तबाह कर दिया, बुतों ने तेरी बिनाई जो है वो जाया कर दी। आज भी बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते, तू फलां के साथ ऐसा करता है, फलां ने तुझे ऐसा कर दिया, फलां नहीं करता, अल्लाह करता है। अल्लाह करने वाला है, किसी को सेहत देता है, बीमारी देता है तो अल्लाह देता है, किसी का कोई हादसा करता है तो अल्लाह करने वाला है, किसी को हादसे से बचाता है तो अल्लाह बचाता है। ये माना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का यही माना है। यही सहाबा ने कहा, उस वक्त भी जुनैरा ने कहा, ओ कमबख्तो, ओ नलैको, लात और मनात और उज्जा, उनको तो पता भी नहीं है उनकी इबादत कौन करता है, उनको तो ये भी नहीं पता उनकी इबादत करने वाला है कौन है। ये बिनाई मेरा अल्लाह ले गया, वही जब चाहेगा इसको रद्द कर देगा, इसको लौटा देगा, और कोई दुनिया की ताकत इसको लौटा नहीं सकती। मेरे मालिक ने मेरी बिनाई दी है, मैं राजी हूं, और मेरा मालिक अगर चाहेगा तो लौटा देगा, हमारी दुआ है वो लौटा दे। चंद ही दिन गुजरे, एक सुबह उठी तो अल्लाह तबारक व तआला ने बिनाई उतार वापस कर,
बिनाई आ गई, फिर खबीसों ने इल्जाम डरा दिया, नौज़ बिल्लाह ज़ालिक, ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो है ये जादूगर है, ये तो जादूगर है। किसी पल पे ये मुखालिफीन अल्लाह की तौहीद को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये चंद एक मिसालें मैंने जिक्र की हैं कि ये कलमा कहने वाले, उनको सुकून नहीं मिलता, उनको आसानियां नहीं मिलती, उनको परेशानियां मिलती हैं, उनको आजमाइशें मिलती हैं, इसलिए कि ये अल्लाह का कलमा है और ये हजम नहीं होता है। ये बड़ा सकील और बड़ा भारी कलमा है, बहुत मुश्किल है। बस एक ही मान लें, बस एक ही रब को मान लें, बाकी सब बेकार हैं, बाकी सब की कोई हैसियत नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला, उसका अपना मुकाम है, बाकी लोगों का अपना मुकाम है, उनको अपनी अपनी जगह पे रखें और अल्लाह तबारक व तआला का जो मुकाम उसको। मैंने जिक्र किया कि अबू तालिब के पास कितनी दफा आए, आखिरी दफा आए तो आकर कहने लगे कि तुम सरदारी चाहिए, ये चाहिए, वो ले लो, ये ले लो, बहुत सारी बातें की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें एक ही बात कहता हूं, मेरी एक बात मान लो, तुम अरबो अजम के मालिक बन जाओगे। अबू जहल कहने लगा, अगर हम अरबो अजम के मालिक बन जाएंगे, बता, हम 1000 बातें मानने के लिए तैयार है। आपने फरमाया, सिर्फ इतना कर लो, एक अल्लाह को अपना रब और अपना माबूद मान, बाकी तमाम माबूदों की इबादत को तर्क कर दो, तुम अरबो अजम के मालिक बन जाओगे। बड़े हंसने लगे, तालियां मारने लगे, कहने लगे, ले, सारे रबों को एक रब बना दिया, ये कैसे हो सकता है? इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, ये तो बड़ी अजीब बात कह दी है कि सारे माबूद बन के जो एक बन जाते हैं, एक नहीं बनते, ये सारे माबूद ही करने वाले। ये वो मैसेज है जिसकी बिना पर इस्लाम के रास्ते में हमारे सलफ ने, हमारे असलाफ ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद और आपके सहाबा ने किस कदर तकलीफें बर्दाश्त की। तारीख पढ़िए, बार बार वाक़े को पढ़िए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन लोगों ने क्या जुर्म किया था जिसकी बिना पर इतनी सख्त तकलीफें और सजाएं जो है वो बर्दाश्त करना पड़ी। अगर वो लोग ये सजाएं बर्दाश्त ना करते, आज ये दीन हम तक कभी ना पहुंच। हमें मुफ्त में मिला है, इसकी कोई कदर नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। उन लोगों ने कैसे जानों के नजराने पेश करके जो है वो दीन की हिफाजत की और हम तक पहुंचाया है। इसलिए जरूरत इस बात की है, इस दीन को इख्तियार किया जाए, अपने सीने के साथ लगाया जाए, इसे कबूल किया जाए और इसे महफूज रखा जाए। अगर ये महफूज हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तादाद को नहीं देखते, अल्लाह ताला फिर मुसलमानों की कुव्वत को नहीं देखते। फिर थोड़े हों, असलिया ना हो, दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में हो, फिर आसमान से जिब्रील अपनी फौजें लेकर जो है वो जमीन पे आ जाते, फिर मुसलमान नहीं लड़ते हैं, फिर अल्लाह के फरिश्ते लड़ते हैं, फिर अल्लाह की मदद गालिब आती है। आज अल्लाह की मदद गालिब क्यों नहीं है? मदद हमारे लिए क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि अल्लाह को मानने वाले है ही, अल्लाह का नाम लेने वाले नहीं। मफादात की जंग है, जहां से मफाद मिलता है वही हमारा रब है, जहां से हमें मफाद मिलता है वो को अपना रब बना लेते हैं। कोई दिरहम का पुजारी है, कोई रुपए का पुजारी है, कोई डॉलर का पुजारी है, कोई ओहदों का पुजारी है, किसी को हुकूमत प्यारी है, किसी को कुछ प्यारा है। अल्लाह तो किसी को भी प्यारा नहीं, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने नसीब हो रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है, इस दीन को अपने सीने के साथ लगाया जाए और इसकी हिफाजत की जाए। जान जाती है, दुनिया जाती है, चली जाए, कोई परवाह नहीं, इसलिए कि ये दीन मेरे रब का है और वो रब ही दुनिया भी देने वाला है, आखिरत भी देने वाला है। अगर दुनिया भी चाहिए, आखिरत भी चाहिए तो इस दीन को अपने सीने के साथ लगाइए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला हमें भी, हमने जो कलमा कहा है उसे मजबूती के साथ थामने की और उसकी हिफाजत करने की जो है वो तौफीक नसीब फरमा दे। जब तक जिंदा है अल्लाह इसी कलमे पे जिंदा रखे, जब मौत आए तो इसी कलमे पे मौत आए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।